میں سب کو ویلکم کرتا ہوں دوبارہ. سب کا آنے کا شکریہ. سب سے پہلے میں حافظ محسن زبیر صاحب سے جوائن کرنے شروع ہو گئی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. تلاوت کے بعد ہم سب ضرور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں میٹنگ کا آج کا ایجنڈا بیسکلی یہی ہے کہ ایک تو یہ جو پروگرام ہم نے انشاءاللہ فریم کیا ہے ہیروز آف گجرانوالہ، اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں اس کو کیا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ کہ ہم لوگ گجرانوالہ کا پرسیپشن جو ہے وہ ہمیں صرف وہ پہلوانوں سے نکال کے آگے چینج کرنا ہے کہ گجرانوالہ از ناٹ اباؤٹ صرف پہلوان. جب گجرانوالہ کی بات ہوتی ہے، کسی نیوز چینل پہ بھی بات ہوتی ہے، جی ہم گجرانوالہ سے پہلوانوں کے شہر سے بات کر رہے ہیں، تو یہ میڈیا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گجرانوالہ صرف پہلوانوں کا شہر نہیں. گجرانوالہ میں بہت بڑے بڑے نام بہت ساری فیلڈ میں پیدا ہوئے. اس سے ہماری جو پہچان ہے گجرانوالہ کی پورے نیشنل لیول پہ بڑی انشاءاللہ ہائی لائٹ ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو میکسیمم کوریج ملے. مقصد یہی ہے کہ ہمارا پرسیپشن ایک تو گجرانوالہ کا چینج ہو، ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ چینج ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کے رول ماڈل سوسائٹی میں ہم لوگ وی آر شارٹ آف رول ماڈل. ہمارے پاس ہیروز کی بڑی زیادہ کمی ہے. ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندے نے بےایمانی کی ہے، کرپشن کیا، امیر ہو گیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کا رول ماڈل وہی لوگ ہے. اس نے راتوں رات پتہ نہیں گیس چوری کی ہے یہ امیر ہو گیا، اس نے ٹیکس چوری کیا یہ امیر ہو گیا، اس نے فراڈ کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کیا یہ آگے. کسی کی بھی جو بڑا آدمی اس کی جو بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا، وہ اس طرح کے نام ہے وہ نمایاں، جو اچھے نام ہے وہ نمایاں نہیں ہے. تو ہمیں ایسے نام نمایاں کرنے کی ضرورت ہے نئی نسل کے لیے کہ جو جن کو ہم انسپائر کر سکیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے، میں خود ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں وہ جنہوں نے آگے لوگوں کو کریٹ کیا. ایک وہ ہے عطا ایک لڑکا، وہ کرکٹ اکیڈمی چلا رہا ہے. تو وہ اتنی زبردست کرکٹ اکیڈمی چلا رہا ہے کہ وہ اپنے پاس سے ہزاروں سینکڑوں لڑکوں کو کرکٹ کھلا رہا ہے. اور جب وہ حسن علی اور وہ اکٹھے سلیکٹ ہوئے کرکٹ ٹیم میں، جب ٹیم میں آفر آئی نا تو اس کو باری ملی کہ یا آپ آ جاؤ یا حسن علی کو کھلا دو. تو ہی والنٹیئرڈ کہ یار میرا جو ایج ہے وہ زیادہ ہے، میں اگر جاؤں گا بھی ٹیم میں تو میں 2-3 سال بعد باہر آ جاؤں گا. اس نے حسن علی کو آگے بھیجا. تو بیک گراؤنڈ میں تو اصل ہیرو تو وہ ہے جو بندہ اس طرح کا جو یہ کریٹ کیا. لیکن یہ وہ ہیروز ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں جن کو ہم مطلب پہچانتے نہیں ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو موٹیویٹ ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد سے ہمارے شہر میں بڑے زیادہ ہیروز ہیں. مطلب شیخ نسیم صاحب ہمارے ہیرو ہیں. اتنا بڑا زبردست دیکھیں صدیق صاحب نے ہاسپٹل ٹرسٹ بنایا، ہیرو ہیں ہمارے. حاجی مراد صاحب ہمارے ہیرو ہیں. اس کے بعد دیکھیے باقی جتنے ویلفیئر کے گجرانوالہ میں کام ہو رہے ہیں، سندر فاؤنڈیشن گجرانوالہ میں بنی ہوئی ہے جو حاجی سرفراز صاحب ہیں. انہوں نے دیکھا ان کی بیٹی کا نام سندر تھا، اس کے اوپر انہوں نے سندر فاؤنڈیشن بنائی. پاکستان کی ون آف دا بیسٹ تھیلیسیمیا کی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہائی بزنس اچیورز بھی ہمارے ہیروز ہیں. اس کے بعد ہائی بزنس اچیورز بھی ہمارے ہیرو ہیں. مطلب وہ انڈسٹریز جنہوں نے ایسا نام بنایا جو نیشن وائڈ نام بنا. تو اس پہ ریگارڈلیس کہ وہ مطلب یہ کسی گروپ کی یہ پریزنٹیشن نہیں ہے، یہ گجرانوالہ چیمبر کی پریزنٹیشن ہے. میں مطلب سمجھتا ہوں کہ جیسے ماسٹر انڈسٹری ہے، شیخ محمود صاحب ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں گجرانوالہ کے. اتنا بڑا بزنس امپائر اسٹیبلش کرنا اور گجرانوالہ کو ایک پاکستان کا ایشیا کا بڑا سیٹ اپ بنانا، ہیرو اور ہیرو ہم ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اور اس طرح کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. اس کے بعد ہمارے بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں جو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا. سہیل احمد صاحب عزیزی جن کو سب
کرتے ہیں وہ گجرانوالہ کے ہیرو ہیں, امان اللہ جو فوت ہو گیا وہ گجرانوالہ کا ہیرو تھا, اور بھی ڈبیٹ ہم کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جنہوں نے کام کیا. مطلب اس طرح کے لوگوں کو ہم ہائیلائٹ کریں, اس کی نامنیز کلیکٹ کریں اور پھر ان کو وہاں جا کے ہم سیلیبریٹ کریں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو گجرانوالہ کا پراؤڈ ہے, فخر ہے, اور ان کو ہم ایوارڈ دے رہے ہیں. تو یہ اس کا تھیم ہے. اس کا وے فارورڈ یہی ہے کہ انور ڈار صاحب بھی زوم پہ ہیں, اور کون ہے زوم پہ؟ رانا شہزاد صاحب, انور ڈار صاحب ہیں, تو آپ کو سر ہم ویلکم کرتے ہیں. وسیم ڈار صاحب ہیں جس کو آپ وسیم ہیں, خالد طاہر صاحب ہیں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن سرٹیفکیشن ریسرچنگ ہے. انہوں نے, اگر آپ مجھے جلدی اجازت دیں گے, انہوں نے ایک بیسک کرائٹیریا جو ہے وہ لکھا ہے. چلیے ہم آگے اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی سارا تھیم ہے. اب اس کی آگے ہم نے آج کی میٹنگ میں جو فائنل کرنا ہے, ایک تو نامینیشن سب لوگ سجیشن دیں کہ کون نامینیز اس کے ہونے چاہیے, اس میسج کو اسپریڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں پروفیشنلس کو ہم نے انگیج کرنا ہے, صرف کیونکہ ہم لوگ نہیں ہیں, سیکٹر اسپیسیفک لوگ اس میں ہونے چاہیے. آپ کسی بندے نے ایجوکیشن میں بڑا زیادہ کام کیا ہے تو وہ ایجوکیشنسٹ کوئی ہو پروفیشنل, وہ اس کو بتا سکتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے بتا سکتا ہے. اسی طرح جو کوئی اسپورٹس میں کسی نے کام کیا ہوگا یا کسی نے اور فیلڈ میں کام کیا تو وہ اس سیکٹر کا ہم لوگ لیں گے. اس میں میرا یہ کہتا ہے کہ کچھ اکیڈیمکس بھی ہیں لوگ, وہ بھی ہمیں بیک گراؤنڈ اچھی بتا سکتے ہیں. کچھ جرنلسٹ وغیرہ بھی جو پرانے میچور ریزنیبل ہیں وہ بھی ہمیں اس میں بہتر گائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہو گیا. اس کے بعد جو سیکنڈ ایجنڈا ہے میٹنگ کا وہ یہ ہے کہ دوسرا جو ایجنڈا میٹنگ کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرسنل کیپیسٹی میں سب لوگ کوئی نہ کوئی چیریٹی میکسیمم کر رہے ہوتے ہیں. چیمبر کے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ جی یہ کام کر دیں, یہ کام کر دیں. چیمبر فوقتاً فنڈ ریز کر کے وہ کام کرتا بھی ہے. پیچھے میں بڑا زیادہ مطلب حوصلہ میرا بڑا زیادہ کہ وہ 1112 کی تھی ریکوائرمنٹ, تو گروپ میں ایسی بات کی کہ جی وہ ریکوائرمنٹ ہے, تو ود ان 30 to 40 منٹس ہمارے پاس جو ریکوائرڈ فنڈ تھے اس سے بھی زیادہ اکٹھے ہو گئے. تو مقصد یہ ہے کہ جو ہماری جو گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی اتنی زبردست ہے, اتنی فورس کمنگ ہے, تو ہم اس کو کیوں نہ فارملائز کر دیں اس پلیٹ فارم کو کہ یہ صرف میرے تک محدود نہیں ہونا چاہیے یا اس ٹینور تک محدود نہیں ہونا چاہیے. عمر سلیم صاحب نے بھی پچھلے ٹینور میں جیسے وہ رمضان میں وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا تھا کووڈ کے دنوں میں, تو جب بھی ہوا مطلب جب بھی پریزنٹ کوئی کہتے ہیں تو سب لوگ ماشاء اللہ سپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ آئیڈیا تھا کہ وائی ناٹ ہم ایسا کوئی ٹرسٹ بنا دیں ایک لائک مائنڈیڈ لوگوں کا, جس میں وہ لوگ آئیں اور اپنے فنڈ جو ہے ہم لوگ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جو زکوٰۃ صدقات دے رہے ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا پورشن اس ٹرسٹ میں ایک ہمارے پاس فنڈ پڑا ہو یہاں پہ, اور اس ٹرسٹ کو اسی طرح ایک پراپر اس کی باڈی ہو, اس کا ایک صدر ہو, اس کا سیکرٹری ہو, وائس سیکرٹری ہو, ممبران وہ نہیں ہو جو اس میں ڈونیشن دے رہے ہوں. اور جو چیمبر کے پاس میں بزنس کمیونٹی کو چیمبر کو کوئی گورنمنٹ اپروچ کرتی ہے کہ یار یہ شہر کا فلائی کام ہے, یہ ٹریفک والے آ جاتے ہیں, یہ کام ہے 1112 آ جاتی ہے یا کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ ایک ایسا فنڈ ہمارے پاس موجود ہو, چھوٹا سا پورشن اس کا بڑا ہو, تو وہ کمیٹی کے پاس ریکمنڈیشن چلی جائے اس فنڈ کے پاس کہ یار یہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے. اب پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک لڑکا آیا تھا, وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں سلیکٹ ہو گیا ازبکستان میں, شاید میچ ریسلنگ میں. وہ پولیس میں نوکری کر رہا ہے, اب وہ میچ ریسلنگ میں سلیکٹ ہو گیا, اب اپنے ہی بلدے پہ وہ سلیکٹ ہو گیا. اب وہ اگر وہاں جاتا ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو پاکستان کا فلیگ کیری کر رہا ہوگا, لیکن اس کے پاس بیچارے کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں. ویری انفارچونیٹ, مطلب اتنا بڑا وہ اچیور ہے لیکن وہ کہاں سے رہ گیا. اس طرح کے لوگوں کو اگر ہم ایک پول آف فنڈ ہمارے پاس ہو تو ہم یہ نہیں کہ کسی ایک بندے کی پریزنٹ کی ڈسکرپشن بھی ہوگی, وہ ایک سیپریٹ باڈی ہوگی, وہ باڈی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہوگی, اس کو مینیج کر رہی ہوگی, اور جو بھی اس طرح کے ریکوائرمنٹس آتی ہیں ان کو وہ مینیج کرے گی, اور بھی اس طرح کے کوئی پروجیکٹس آ جاتے ہیں. تو یہ دو ایک آج کے ایجنڈاز ہیں. تیسرا یہ کہ ہمیں کوئی ایک علاوہ اس کی کمیٹی بنانی چاہیے کہ لانگ ٹرم ویژن آف گجرانوالہ چیمبر اور ویژن آف گجرانوالہ سٹی ہمارا کون سے ایسے کوئی گولز ہیں جس پہ ہم اگری کر جائیں کہ ہماری کوئی بھی رجیم ہو ہم اس پہ کبھی بھی ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں, کمپرومائز نہیں کریں گے.
یہ نہیں کہ ہم لوگ اس پہ کہیں کہ جی اب یہ رجیم ہے وہ رجیم ہے، سب کو اس کا بورڈ میکسیمم اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ایک کمیٹی ہم بنائیں کہ وہ کمیٹی ایسی بن کے ایک چند باتوں پہ ہم یہی کر رہے ہیں پرنسپل جس کو چارٹر ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے انٹرسٹ کے لیے چند پرنسپل اصول ہم ایسے طے کر رہے ہیں کہ جن کو ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو سر ابھی اس کے ہاؤس اوپن ہے. سب سے پہلے ہم ہیروز پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد باقی سب لوگ کو اوپر ہے. اگر ڈاکٹر صاحب آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. اگر میں میری جب بات ہوئی تھی تو ملک طاہر صاحب جو انہوں نے ایک کرائٹیریا لکھنے کی کوشش کی تھی، بٹ دس از انیشل کرائٹیریا کے جو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. اگر اسکرین شیئرنگ کی اجازت ہو جائے تو پوسٹ جو ہے اس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اسکرین شیئرنگ کی اجازت دے. اوکے وہ لکھا ہوا نہیں، وہ اسکرین شیئرنگ جو ہے ڈسیبلڈ ہے کر دیا وہ اگر اس کے اچھا تو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہو گئی ہے اسکرین شیئرنگ تو وہ ایک پیپر میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ملک طاہر صاحب نے اس پیپر کے اوپر تھوڑا سا بولیں گے. تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک پیپر آپ کے سامنے ہے کہ who can nominate people of Gujarat. تو ملک صاحب کو میں اگر آپ کی اجازت ہو وہ دے دیتے ہیں تو ملک صاحب اس میں دیکھیں ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کچھ ایسے لوگ تھے کووڈ کے دنوں میں جنہوں نے بڑا زیادہ کام کیا. میں کوشش پوری کروں گا کہ کم سے کم ٹائم ہو اور آئیڈیا آپ لوگوں تک چلا جائے پھر ڈسکشن میں انشاءاللہ میں ڈالیں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا ایک کانسیپٹ تھا، میں اس لیے شروع سے کرنے لگا ہوں کہ میں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ میں بھی دوسری طرف لیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا چیمبر کا جو انیشیٹو ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کی دل شامل ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں جو پازیٹیو ہے کنٹریبیوٹنگ ہے جنہوں نے اس علاقے کی بہتری کے لیے کسی اینگل سے کام کیا ہے ان کو ریکگنائز کیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ حسن پسند ہے، حسن کی تعریف کرتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے سوسائٹی میں احسان کیا ہے، خوبصورتی بڑھائی ہے، ان کو ریکگنائز کیا جائے، ان کو ڈھونڈا جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے. تو اس کے لیے مختصر 3 چیزیں ہم نے ریکمینڈ کی ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا مجھے پتا ہے ہمیشہ ایک بڑا موشن ہے اپنے شہر کے لیے اور شہر کی بھلائی کے لیے. تو ہم نے ایک سمپل سے ایک آئیڈیا نکالا کہ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیمبر ایک کمیٹی بنا لے مستقل بنیادوں پہ، وہ کمیٹی ایک پروسیس کے تحت پیرو ڈکلیئر کرے. وہ پروسیس کیا ہے کہ ان کے پاس 10 12 15 25 30 100 یا آپ لوگ بنا سکتے ہیں کیٹیگریز کہ یہ لوگ ہیں، ان کو ہم فارم بھیجیں، ان کو ہم نامینیشن بھیجیں کہ یار اپنا ہیرو بتاؤ، آپ ہیرو بتاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ آج اس محفل میں بھی بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ جس طرح مغل صاحب نے شروع میں بتایا کہ کرکٹ کا انہوں نے ایک ہیرو آئیڈینٹیفائی کیا، تو اس سے میں سمجھتا ہوں آپ نیشنل میڈیا میں چلے جائیں گے ان کو ہیرو کو ایوارڈ مل جائیں گے. تو میں آئیڈیا دے رہا ہوں، ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس طرح کام کریں کہ شہر کے اندر ایک موٹیویشن ہو. مثلاً آپ کے جو پریس کلب کے ممبرز ہیں وہ بھی انٹائٹل ہیں کہ وہ نامینیشن کر سکتے ہیں. آپ کے چیمبر کے جو ممبرز ہیں وہ انٹائٹل ہے نامینیشن کر سکتے ہیں. اس شہر میں جو بندہ جو 70 گریڈ سے پلس ہے، ریٹائرڈ یا سرونگ، وہ نامینیشن کر سکتا ہے. کوئی ملٹری آفیسر، آپ کے شہر کا جو ایم این اے ہے، ایم پی ہے، پریزیڈنٹ ہیں، چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں، مارکیٹنگ کے ڈفرینٹ جو آپ کی یونینز ہیں، ٹریڈرز ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس طرح پورے شہر کو ایک پارٹیسپیٹری مائنڈ میں لا سکتے ہیں. یو کین انوائٹ دا ہول سٹی، کم اینڈ فائنڈ آور ہیروز. مثلا اگر آپ 50 فارم جو ہے وہ گجرانوالہ پریس کلب کو بھیج دیں، اپنے 100 ممبرس کو دے دیں گجرانوالہ میں جو آپ کے چیمبر ہے، یار آپ اپنا اپنا ہیرو تلاش کرو. تو اس میں ہم نے ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کیا کہ ہم لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس کو فائنل کرنا ہے، ہم آپ کے بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں. تو فیصلے آپ نے کرنے جس طرح کہ میں نے ایک پوری لائن بنا دی ہے کہ کرنٹ اینڈ ایکس فیڈرل منسٹر ہو سکتے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی کے، آل فرام گجرانوالہ. دس از ون تھنگ امپورٹنٹ، whenever I say anything, this is all from Gujarat. Ex-member of National Assembly, member of Provincial Assembly, ex-member of Provincial Assembly اس علاقے سے ڈسٹرکٹ جج ہو سکتے ہیں،
کمشنر ہو سکتے ہیں, ڈپٹی کمشنر ہو سکتے ہیں, پریزیڈنٹ ممبر آف دی چیمبر ہو سکتے ہیں, اور پریزیڈنٹ پریس کلب ہو سکتے ہیں, ممبرس پریس کلب ہو سکتے ہیں, اس شہر کے ٹیچر ہو سکتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں, ڈین ہو سکتے ہیں, ہیڈ ماسٹرز ہو سکتے ہیں, مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں, ٹاپ بزنس مین ہو سکتے ہیں, ریٹائرڈ آفیسر ہو سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو چیمبر نیکی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جب نیکی کریں تو شہر میں سب کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے 24-25 کیٹیگریز بنانے کا, دیر از اونلی ون تھنگ بہائنڈ کہ وی شوڈ انوالونگ دی ہول سٹی. ایسے لگے کہ یہ چیمبر کے یہ اپنا مغل صاحب کی کوئی منوپلی نہیں ہے, یہ محبت ہے شہر کی, اپنے شہر کی. وہ تب ہوگی جب سارا شہر انوالو ہوگا. ایک چیز اور ڈار صاحب نے کی نوٹ بھی ہونا چاہیے کہ جو چلو آئی ول بی کیئرفل سر. نیکسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جو لوگ نیکی ہے مسلمان ہو گئی سمجھیں کہ نیکی سم تھنگ فار ایور. جو لوگ جن لوگوں نے اپنے شہر کے لوگوں سے پیار کیا, ان کو اپنا بلڈ دیا, تھنکنگ دی, پیسہ دیا, ویژن دیا, وہ اگر دنیا سے بھی چلے گا وہ اب بھی ہمارے لیے ہے, وہ ہمارے اب بھی زندہ ہے. تو اس میں آئی ڈی سی یہ تھوڑا سا ریڈ کلر کا کام دیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہیرو, اگر ہمارا بزرگ, ہمارا بڑا آدمی شہر میں جس نے کنٹریبیوشن کیا ہے, اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا وہ تو سب بھی جانا ہے. تو ہمارے لیے وہ اللہ نے اس کو دیکھ لیا, مگر ہمارے لیے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم ابھی بھی دیکھ لیں گے کہ 5 سال 10 سال 15 سال 50 سال پہلے ہمارا ہی ہوا ہے, تو ہم اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کی نواسی, اس کا نواسا ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اپریشیٹ ہے, تو سلیوٹ ہے کہ یار اس شہر پہ آپ کا احسان ہے, ہم نے 50 سال تک 100 سال تک اس کو ریکگنائز کیا, وہ سلیوٹ ہے. تو یہ تو ایک اسپیکٹ تھا. یہ ہے پارٹیسپیٹری. آپ پورے شہر میں ماحول ڈالیں کہ آپ کی کمیٹی 50 100 75 200 1 2 یہ آپ کے ڈیسیجن ہے. آپ سب کو ایک اپلیکیشن دے دیں کہ یار یہ چیمبر ایک نیکی کر رہا ہے, آپ اپنے اس میں حصہ ڈالیں. پریس کلب کے پریزیڈنٹ کو بھیج دیں 100 میں نامینیشن دے دیں, اپنے چیمبر کو بھی 100 بندے ڈھونڈو. اس طرح گفٹ یونیورسٹی وہاں پہ 5 آپ ڈینس یا ان کو بھیج دیں جو اہم لوگ ہیں. اب آگے کیٹیگریز کیا ہیں, وہ ہیروز کیا ہیں. اگین میں نے کوشش کی اس کو بہت سمپل بنائیں گے. جیسے ایک ہیرو ہے, ایک ہمارا لیڈرشپ ہے. جس طرح میں سمجھتا ہوں جو مغل صاحب نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا وہ اسپورٹس ہیرو ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی ایک سیکریفائز ہے. ایک آدمی نے سوچا کہ یار میری ایج کی اگر میں نیشنل ٹیم میں جاتا ہوں تو میری ایج بھی تو 2 ایئرس, مگر اگر یہ حسن علی آتا ہے, یہ ینگ ہے, یہ 10 سال پاکستان کے لیے کھیلے گا. اور میرا خیال ہے, میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, حسن کے کرکٹ میں آنے سے آپ اگر 50 کروڑ کا ایک پروجیکٹ سمجھنا لے گا بہتر کرنے کی کوشش کریں, تو اس لڑکے نے صرف وہ جو آؤٹ کا ایک سٹائل بنایا اور جو وکٹ لی ہے, جو پاکستان کو ون دی ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو دفعہ اس کو جب انٹرویو کیا گیا اس میں اس کے اندر وہ موشن دیا گجرا والا نے. پھر جس طرح انہوں نے ابھی وہ بلڈ کی بات کی, وہ آپ کا ہیرو ہے جس نے آپ کے شہر کی صحت کے لیے کام کیا. اس کے نیچے ہم نے بڑی چھوٹی چھوٹی سنگل لائنیں لکھی ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے ہم کو بندی لائن کا نام دیا. وہ ڈسکشن یہ ہوئی تھی کہ یار ہم نے کسی بھائی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ دیے گا امتحان ہے, اس کو 1-2 منٹ چاہیے. اردو یہ سارا کچھ اردو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سمپلی یس نو کریں اور بندے کا نام لکھ دیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے آج کے بزی ٹائم میں آپ کسی کے پاس جائیں گے کہ یہ 1 گھنٹہ لگاؤ, یہ ریسرچ کرو, اس کا نام بتاؤ, اس کے باپ کا نام بتاؤ, اس کی ہسٹری بتاؤ. نہیں, ہم نے موٹی موٹی باتیں پوچھیں کہ یار ہمارا ہیلتھ پہ کون ہیرو ہے, یس نو کر, اس کا نام لے لیں, یس نو کر دیں. اب اسپورٹس آ گئی, اور اسپورٹس کا تو خود آپ نے پڑھائی ہیرو اپنا آئیڈینٹیفائی کیا. آگے چلتے ہیں. اس طرح اگلی کیٹیگری ہے ایجوکیشن میں. اور شہر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون اس شہر کا باپ ہے, کس لوگوں نے یہاں پہ یونیورسٹیز بنائی, کسی نے کالج بنایا, کسی نے مدرسہ بنایا, کسی نے سوچا کہ یار دین کی بیٹی ہم ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا اگر آپ اس کو تعلیم کے بارے سے بھی آرٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں آرٹ میں, مصور بھی ہو سکتے ہیں, ڈانسر بھی ہو سکتے ہیں, رائٹر بھی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے آرٹ کے حوالے سے پنجابی لٹریچر بہت بڑی چیز ہے, پنجابی اکثر بہت بڑا ایک آرٹ ہے. ان بھی لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا. میں مطلب ہندوستان جاتا ہوں, پریتم کا ذکر آتا ہے, شیخ فرام گجرا والا. تو میرا کہ 100 سال ہو گئے, وہ آج تک زندہ ہے, اس کا گجرا والے کے ساتھ نام زندہ ہے. اسی طرح سوشل ورک ہے.
सोशल वर्क में आ जाएगा जिन लोगों ने कमजोरों को, मजदूरों को, खवातीन को, बेवाओं को, यतीमों को हेल्प किया, वो भी हमारा ही का हम उसको भी ढूंढे। कोई सिंपल ये जो हमने लिखा है ये एक किस्म की मैंने फिलिंग दी है जी दर्शक, थैंक यू वेरी मच। हमें सब पॉइंट आपका आ गया है सर। अभी सर कह रहे हैं दुआरी मैं ऑलमोस्ट ना इट्स नॉट ह्यूमन राइट्स इसी तरह कंसर्न पे आ गया जिन लोगों ने शहर में मामले को पकड़ लिया, जिन्होंने शहर के सामान पे पकड़ लिया, जिन्होंने शहर के अंदाज में फर्क किया, तो कंसर्न राइट लोगों ने लिखा है सर। जी बिस्मिल्लाह। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो ठीक हुआ जी आ रही है आवाज जी ताइजब रिक्वेस्ट करेंगे ताइजब। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि वो भी हमारे जॉब दिए, उनको ट्रेंड्स दिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नॉलेज दी, उन्होंने बाहर से ट्रेंड दे दिया, बाहर से टेक्नोलॉजी दे दिया, या मशीनरी दे दिया, उन्होंने क्रिएट करा और उन्होंने सब सब दे दिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिंदगी की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन है। आज के ज़माने में सबसे बड़ा ईडो को भाग है वो आपके शहर का, मेरे शहर का, कोई भी हो जो आपके लोकल एक्टिविटी करता है। कैमरा रिलीज करो, कैमरा करो। उसको जोड़ना है, उसकी रिसर्च करनी है, ताकि सारी बात का मकसद है कि हम एक हीरो जब ढूंढते हैं तो हम 100 नए हीरो को इनवाइट करते हैं भाई और इसे योग से तुम इसके बाप बनो, ये इसकी वारसी खत्म करो, इसकी ड्यूटी पैदा करो। जो एहसान का मतलब है, अरबी का मतलब है कि जिसने मुसलमान ने उसने ऐड आगे से एक्सपोर्ट पर आए हैं तो मेरा कहना है जिन्होंने स्टेट का काम किया उससे शहर में एनवायरनमेंट को भी सैटिस्फाई करेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे मालूम है सर का भी नहीं आता मैं बोल के जितना मुझे एलैबोरेट करूं किसी वॉल्यूम्स और इस जो भी किसान को इसको करेंगे थैंक यू। तो अच्छा आपका म्यूट है, जो माइक म्यूट है उसको ओपन कर लें अगर आप बोल रहे हैं। जी आप वेट आप वालेकुम सलाम। जी आमिर अजीज साहब बात करेंगे जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर अजीज बात कर रहा हूँ। ये अहमद साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं तो बड़ा शुक्रिया आप बात करें। मैं कुछ कहना चाह रहा था अगर आप दोनों पास टाइम हो। हम तो आपके गुलाम हैं। सो काइंड ऑफ सर, सो काइंड ऑफ यू। सबसे पहले मैं मिस्टर प्रेसिडेंट साहब से ये पूछना चाहूंगा कि ये गुजरांवाला की डेफिनेशन क्या है? मतलब गुजरांवाला डिवीजन है, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है। गुजरांवाला हमारी चैम्बर का डोमेन है ना, गुजरांवाला की डेफिनेशन वो है, उसमें हम हीराबाद को भी करेंगे, अहमदाबाद को भी करेंगे, दामोह को भी करेंगे। जो
गुजरावाला चैम्बर की डेफिनेशन है ना, जो हमारी गुजरावाला इंक्लूडिंग अहमदाबाद, जो हमारा चैम्बर का जो हमारा सर्कल है, चैम्बर का सर्कल है, वहाँ की सारा हाईलाइट करेंगे। अच्छा जी, तो उसमें कुछ ये कैटेगरीज में बड़ा इसको इंसान के साथ ये कुछ मैंने बनाई हैं, तो इन चीज़ों को हम पहले ये इस पे आगे कर लें, अगर कोई ऐड करनी है तो ऐड कर दें, अगर कोई डिलीट करनी है तो डिलीट कर दें। तो ये एक अच्छी सजेशन है कि अपने डोमेन और एरिया के अंदर ही काम किया हाँ जी, अपनी डोमेन जो है, जो डोमेन जो है पहले क्लियर होना बड़ी जरूरी थी। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने ये कुछ लिखी हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप भी जो इसमें जरा देख लें, और मेरे मौजूद अरकान जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं वो भी इसको जो है ना लिख लें, किसी को डिलीट करना है तो डिलीट करवा दें, किसी को ऐड करना है तो उसको ऐड कर दें। तो ये मैं सबसे पहले फिलैंथ्रोपिस्ट, ये अगर बंदा नोट कर रहा है तो ये नोट करना चाहिए। सेटिंग्स ऑफ मिरर्स को मार्केट देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। फिलैंथ्रोपिस्ट, एक्सपोर्टर इन एनी कैटेगरी, कोई लिटरेरी पर्सन जिसने कोई लिटरेचर पे या अदब पे कोई काम किया हो, जर्नलिज्म, सहाफी, अगर कोई सहाफी जो गुजरांवाला में जिसने सहाफत पे काम किया हो। नहीं, बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, ये कैटेगरी, तो ये सिर्फ मैं कैटेगरी डिफाइन कर रहा हूँ। मैं ये दे रहा हूँ, इसमें कोई कैटेगरी नहीं, उसके बाद आप जितनी मर्जी डिस्कशन करें। क्या करें? हाँ जी, अच्छा ये टकिया मुखालिफ सी लेकिन माशाल्लाह शिकस्त बाज दे के तो एक्सपोर्टर्स हम इन कैटेगरीज को फॉलो करेंगे कि एक्सपोर्टर कैटेगरी, लिटरेरी पर्सन, जर्नलिज्म, इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्टिस्ट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एजुकेशनिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, रिसर्चर, न्यू इन्वेंशन, स्पोर्ट्स अचीवर, academia, Sir, please, thank you, please. paramedic staff, ये चीजें हैं, ये मैं कैटेगरीज कुछ मैंने आप ये की हैं, इस कैटेगरीज को आप लोग कंसिडर कर लें। अगर किसी में से कोई आपको डिलीट करनी है, अगर इससे को आपने कोई एडअप करनी है तो आप लोग एडअप कर लें, हाउस आपके लिए खुला है। अगर आप किसी में भी मेरी किसी बात पे याद है तो आप प्रेसिडेंट साहब से आप बात कर सकते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चेयर की परमिशन से बात करें प्लीज। इसमें मतलब वो ऐसे हमारी मीटिंग देखिए, हम ऑनलाइन भी हैं और हमारा प्रेशर हम हीरोज नॉमिनेट कर रहे हैं, हमने हीरोज पैदा करने हैं, तो मीटिंग का डिसिप्लिन प्लीज। मलिक जी साहब से थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। मेरी उससे गुजारिश होगी कि जहां हम हीरो, अगर हमने बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि गुजरांवाला के वो लोग जिनकी खिदमत बेतहाशा नुमाया है, किसी फील्ड में भी उनको एक्नॉलेज किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को गुजरांवाला में ट्विंकलिंग स्टार्स का पता हो, पास्ट और प्रेजेंट। लेकिन दूसरी तरफ अनिल साहब, मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि मियाँ साहब, ये
अगर हमने यहाँ पे बहुत समझदारी से एक कमेटी ना बनाई और वाइजली, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे, एक हमारा सोशल सेटअप है कि लेट्स से नुमान साहब हीरो डिक्लेयर हो जाते हैं तो मैं इस जिद में नाराज हो जाता हूँ कि मैं क्यों नहीं हुआ। एक हमारा सोशल सेटअप है, तो लिहाजा जैसे मियाँ आमिर अजीज साहब ने बात की, उन्होंने सेक्टर्स बताए कि ऐसे ऐसे सेक्टर्स को, मैं समझता हूँ कि ये हीरोज वाला सिलसिला इंशाल्लाह ताला आपने स्टार्ट किया और ये चलता रहना है। हीरोज नए आते रहने हैं, आने वाले सदर भी हीरोज को अवार्ड देते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाजत दें, हाउस इजाजत दे, तो कुछ फंडामेंटल अगर रूल्स के लिए बात करूँ, एक तो मेरी गुजारिश है हाउस से कि इसमें सियासी लोग नहीं होने चाहिए, सियासी भी और दीनी, क्योंकि सियासी लोग आज साहब, आप फर्ज करें फलां साहब के फॉलोवर हैं, मैं उनके मुखालफ हूँ, मैं जिनका फॉलोवर हूँ आप उनके मुखालफ हैं। इसमें बिजनेस कम्युनिटी, इसमें आर्टिस्ट, नामवर डॉक्टर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, और चले अगर मलिक साहब ने 2 बातें की हैं, किसी को इकरार है तो मेरी दूसरी, जैसे मियाँ साहब ने कहा कि फर्ज करें मियाँ साहब एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपए की, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 1 रुपए की, वो भी कैटेगरीज मिनिमम आप रखें कि यार मिनिमम एक्सपोर्ट ऑफ लेवल या इंपोर्ट ऑफ लेवल ये होगा तो वुड बी कंसीडर्ड एज, क्योंकि इस तरह तो आप, मैं 1 कंटेनर एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं भी कहूँगा जी मेरा नाम भी डाला जाए। तो ज़्यादा ये बातों को थोड़ा सा मैयर कर लें, ये चीज़ें जो थी कैटेगरीली फाइन कर लें, और इस वक्त भी अगर आप 50 से 100 बंदा इजीली आपके पास हो जाए, ये भी ना हो कि भाई साहब इतनी बड़ी बारात कर लें कि ना एंटरटेन हो सकती हो और दोस्तों कदर भी ना हो। फिर ये भी नहीं हो सकता कि आपको अवार्ड मिल रहा हो तो किसी ऐसे बंदे को अवार्ड दे दी जाए जो हीरो तो हो लेकिन बिल्कुल छोटे लेवल का। हीरोज में भी तो फर्क है ना, कुछ स्टेज ड्रामों के हीरो हैं तो बड़े बड़े हीरोज हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये इतनी बड़ी भी बारात ना हो जो एंटरटेन ही ना हो। फिर मैं बात खत्म करूंगा इस बात से कि मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका इनिशिएटिव ले है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने फार्मर प्रेसिडेंट हमारे ग्रुप से रिलेटेड SVPs और VPs हैं, कम से कम सारे इस बैच में हीरो जरूर डिक्लेयर हो। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर दोस्त आगे बात करेंगे। आपने एक राणा शहजाद साहब की बात करना चाह रहे हैं। जी आ रही है जी आ रही कब आ रही है आपका पता नहीं, माइक दूर है थोड़ा सा। ठीक है आ रही बात। क्लियर है ये मैक्सिमम 50-100 व्हाटएवर द बेंचमार्क करते हैं कि हमने कितने इसमें सेगमेंट को प्राइस में हमने मुद्दा रखते हैं, हमने डॉक्टर रखते हैं, हमने कोर्सेज पे क्षमता जो है वो रखते हैं, हमने कोर्सेज में अचीवर रखते हैं, हमने बिजनेसमैन के अचीवर रखते हैं। एक्सपोर्ट का हर सेगमेंट का लेंगे तो 50 हर सेक्टर का लेंगे तो 50 सेक्टर है, बेस्ट एक्सपोर्टर रखते हैं, बेस्ट टैक्स पेयर रखते हैं, बेस्ट बिजनेस जिन्होंने कोई नई कोई भी इनोवेशन की उन्हें रखते हैं, और बिजनेस केस रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं, जो भी आपके सेगमेंट्स हैं। और इसको इतना ट्रांसपेरेंट हो कि कोई भी बंदा इस पे क्वेश्चन मार्क ना कर सके। बेशक कमेटी करे ट्रांसपेरेंट, व्हाटएवर उसका बैठ के प्रयोग बनाए तो ट्रांसपेरेंट हो और इसमें कोई चॉइस की गुंजाइश ना रहे कि प्रेसिडेंट या कमेटी की कहते बंदा वहाँ बैठना या नहीं बैठना, बंदा सजेस्ट किसने किया है तो वैसे हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। तो हीरोज हैं वो हीरोज रहेंगे, उनको मेरे जो आपके अवार्ड देने से हमारा हीरोज कम होगा ना बढ़ाई होगा। हम उसको डेकोर करेंगे और अपने शहर की इज्जत और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे या ये हमारे हीरोज हैं और हम अपने हीरोज की कदर करना चाहते हैं।
मेहरबानी ये करें कि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो अप्लाई करें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सभी लोगों को लाएं। बेंचमार्क जो रह जाएंगे अगले साल आ जाएंगे, रिजर्विंग भी कुछ रह जाएंगे, बड़ा क्लोज कॉम्पिटिशन होगा, दो बंदे एक जैसे हुए एक आधे का तो रह जाएगा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जो भी सेगमेंट होगा इस तरह का जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने हीरोज को नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो मेरी तो सही गुजारिशात है इसको जितना मुमकिन हो सके ट्रांसपेरेंट बनाएं और जितना मुमकिन हो सके इसमें इसको इस हद तक कि आप जिसको ये अवार्ड मिले इससे क्या बनाए कोई मैंने अचीवर होगा ये ना होगा हम 400 अवार्ड पाउंड पे हो और ये अवार्ड वेरी थैंक यू आजम, बिल्कुल आपकी फीडबैक हमें दी है। तो यूसुफ साहब अब बात करेंगे। एजेंडा कि हम अपने अपने जो समझते हैं कि नाम वो भी अपना सामने रखें ताकि उनको सेलेक्ट हो सके, अगर वो इस काबिल है तो उसको कर सकें। मैं दो नाम जो है ना वो मैं पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। एक का नाम तो राइस के हवाले से है कि मैं उस शख्सियत का नाम लूँगा जो जिसकी वजह से आज अगर कोई बड़ी बड़ी मिलों का मालिक है तो उसके पीछे उसकी काश का ज़रूर उसका हाथ है। आज अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तो उसमें उसकी काविश शामिल हाल है, जिनका नाम है मसूद अहमद खोखर, जिन्होंने 1988 में राइस जब गवर्नमेंट के पास था, RCP के पास था, तो उस वक्त उसकी काविश से ये प्राइवेट सेक्टर में आया। प्राइवेट सेक्टर में आने की वजह से आज हम बड़ी बड़ी मिलों के मालिक हैं। तो मेरी गुजारिश है कि उनका आज वो बेचारा पीछे है, वो जिस हाल में जिंदगी गुजार रहा है वो उनके दोस्तों को पता है या उनको पता है, लेकिन उसकी काबिज से जो दोस्त हैं हमारे आज बहुत बहुत बड़ी मिलों के मालिक हैं। तो मेरी गुजारिश है कि उनका नाम जो है इसमें जरूर शामिल किया जाए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। मसूद अहमद खोखर। सेकंड नाम मैं दूंगा हमारे कानून की बल्कि जिला गुजरांवाले की बहुत बड़ी शख्सियत थी जो 1988 में जो शहीद कर दिए गए, उनका नाम था चौधरी गुलाम मोहम्मद बेरका। उनकी काफी किसी से छुपी नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो हर लिहाज से जानी पहचानी थी। तो एक उनका नाम जो है ना वो शामिल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सर इसमें प्लीज क्रॉस टॉक न करें आप। ये हम नॉमिनेट आप नॉमिनेट करना हर एक कहा कि कोई बंदा पाबंदी की नॉमिनेट करने में उसके पास स्क्रूटनी कमेटी इसका फैसला करेगी कि ये नॉमिनी आगे एलिजिबल है कि नहीं है। तो नॉमिनेट तो कोई बंदा भी कर सकता है इसमें। मतलब इरफानी साहब प्लीज। मेरे ख्याल बहुत लंबी बहस है। मैं समझना कि मैं तुम अपने नाम लेके ले आ रहा सारा दोस्तों लोगों के सामने नाम लेके दे रही बैकग्राउंड लेके दे रही असं सिलेक्ट कर लेंगे तुझी जी मैं जी कमेटी बनाई ऐसा कोई जिला गलत नहीं लगी ये बहुत खराब है। नहीं, मैं आपकी राय मुकदम है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप नाम लिख कर दें। उसकी मेरा नियत ये है, फर्ज करें मैं नाम लिख के देता हूँ, देखिए हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं और मामले को अच्छी तरह ले जाने की। फर्ज करें मैं 6 नाम लिख के देता हूँ, आप 6 नाम में से एक भी ना आए, एक भी ना आए, मैंने ऐसे ही नाराज होकर बैठ जाए, नाराज होकर बैठ जाए। ये आपसे ये आपके साथ होना है। आप एक मेहरबानी करें कि आप कैटेगरीज फाइनल कर लें, उसके बाद आप खुद वो जो कमेटी हो वो चुन ले, नाम वो देख ले, लेकिन मैक्सिमम लोगों को दिया जाए। जैसे राणा जगार साहब ने कहा कि खुदा न खास्ता कुछ दोस्त रह जाएंगे वो अपनी दफा आ जाएंगे, लेकिन अगर ये हमारे यहाँ पे अरफानी साहब 12 नाम लेके देते हैं, मियां नसीम साहब 13 नाम लेके देते हैं, मैं 14 नाम लेके देता हूँ, नसीम साहब 18 नाम लेके देते हैं, हमारे एक बंदा आया, उमर साहब के 8 आ गए, नाराज हो जाना हमसे। क्रॉस टॉक में उमर सिंह साहब आप बहुत शुक्रिया आपने
बाकी आगे जो आप कमेटीज बनाते हैं फर्दर प्रोसेस वो करते हैं। मैं क्लोज करता हूँ, सेकंड करता हूँ कि ये तीनों एजेंडा पॉइंट्स इस वक्त की अहम जरूरत है और बड़ा अच्छा आवाज है। थैंक यू। इसमें सर हीरोज के ऊपर मेरा ख्याल हमें इसको जो थोड़ा सा समअप करना चाहिए। इसमें सब लोग अपने जो स्क्रूटनी कमेटी के लिए हमें रिकमेंडेशन नाम जैसे कि ये स्क्रूटनी कमेटी के लिए, उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी ने जब आपने राइस का नाम लिया ना, अब हम ये राइस के 4 सेक्टर के जो एक्सपर्ट होंगे ना उनको कमेटी के अंदर मौजूद होंगे, वो उसको रिकमेंड कर देंगे। मैं दोनों नामों को नहीं जानता, फॉर एग्जाम्पल आमिर साहब जानते होंगे, सभी साहब जानते होंगे, मंजूर साहब आजाबाद वाले जानते होंगे। हाँ हम सर कैटेगरीज भी फाइनल नॉमिनीज के बाद होंगी। हम कैटेगरीज भी एक कैटेगरी से फॉर एग्जाम्पल हमने कैटेगरी फाइनल कर दी, उसमें नॉमिनेशन ही कोई नहीं आती है, तो हम नॉमिनेशन मैक्सिमम आ रहे हैं उसको हम सब करके फिर कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। फिर उस कैटेगरीज के हम एक्सपर्ट्स को, सेक्टर्स को, न्यूट्रल लोगों को उस कैटेगरी का इंचार्ज बना के स्क्रूटनी कमेटी में डालेंगे, वो फिर उसको फाइनल यस को कर देंगे और बाकी लोग उसको ओवर देखेंगे। तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कैटेगरीज की बजाय सिर्फ 3 या 4 या मैक्सिमम 5 तक इसको आप रोक लें। सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट, और जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उनको प्रमोट कर लें। डॉक्टर्स को देख लिया जाए या जो मेडिकल के शोबे में, एजुकेशन में देख लिया जाए, और कोई एक सेक्टर और देखें। इसको एक एज ए पहला पायलट प्रोजेक्ट देख के किया जाए। इसको रिफाइन करने के बहुत से रास्ते आगे मिल जाएंगे। तो मैं ख्याल इसको छोटे लेवल से शुरू करेंगे। छोटा लेवल नहीं होगा, खैर काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन चूंकि इसमें सारे हम अपने करीबी दोस्त ज़्यादा होंगे, हम इसको शायद संभाल लेंगे। बहुत ज़्यादा सेक्टर्स डाल लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट बहुत पैदा हो जाएगा। मेरी राय है ये। अनवर रसूल साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया जी साहब। ये नॉमिनल जो बात की है वही मैं करना चाह रहा था कि हम इतने ज़्यादा सेक्टर को ना करें इन्वॉल्व। पहला हमारा है मेन तो हमने अपने बिजनेस कम्युनिटी को लेकर चलना है। उसके अलावा कोई दोस्त कह रहा था 50 साहब के नाम ले रहे हैं कि 90 जो हमने नाम दिए तो हम फंस जाएंगे। हमने मेन रखना है जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के हैं, इसके ऊपर सेकंड ये देख लें कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी से ही रफाई कामों में बहुत है कि सबसे अच्छा हीरो वही होता है जो लोगों के लिए काम करता है, उसको हम देख लें। उसके अलावा यह है कि हम कमेटी वो बनाएं जैसे मलिक साहब ने और राना शहजाद साहब ने फरमाया कि हमने उस लोगों को जो है ना इसको बिल्कुल छोटा रखना है। ये भी नहीं हमने करना कि इतनी लंबी लिस्टें लंबी बहसों में आ जाएंगे। अगर हमने ज्यादा कर दिए, इधर उधर के लोग डालने सिफारिश से किए, तो ये हमारा सारा जो आपने स्टेप लिया इतना वो सारे का सारा जो ना बर्बाद हो जाएगा। तो जो कमेटी आपने बनानी है कोशिश करें वो सीनियर्स इस तरह की बनाएं जो कम से कम ये कर सके कि किसी के सिफारिश के ऊपर कोई बंदा ना डाल सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सईद साहब। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी से बंद करवाने का भी। सबसे पहले तो आप ये कमेटी बनाएं जो कैटेगरीज डिसाइड करें। अभी देखिए हमारे पास जितनी भी डिस्कशन हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बहस कर रहे हैं अभी हमारे असलम साहब ने उनकी तजवीज़ भी अच्छी छोटी रखा जाए, लेकिन जो आपने इनिशिएट किया है इसको हाईलाइट करने के लिए और इसको पूरी इसकी जो डीप सेंस है उसको बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें।
बहुत छोटा करेंगे तो वो बड़ा लिमिटेड हो जाएगा, और अगर हम अपने ही इसके ऊपर रखते हैं, नो डाउट कि उनकी जो प्रपोजल है बड़ी ज़बरदस्त है कि हम अपने बिजनेस कम्युनिटी के अंदर हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं तो वो जो हम चीज़ उजागर करना चाह रहे हैं गुजरांवाला, हीरोज ऑफ द गुजरांवाला, तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि कमेटी बैठे जो डिसाइड करे डिफरेंट कैटेगरीज, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही साल में आप सारी कैटेगरीज को डाल दें, इसको ऑन द ईयर सब इसको कर सकते हैं कि इस साल ये कैटेगरीज होंगी, अगले साल ये होंगी, और जहाँ तक ये परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मुझे बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, दूसरी चीज़ें, मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देयर वुड बी सम क्राइटेरिया कि अगर एक्सपोर्टर है तो 10 लोग अगर एक्सपोर्टर को कर देते हैं तो देयर मस्ट बी अ क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया उसमें वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, द प्रोडक्ट, अगर कोई बंदा नॉवल प्रोडक्ट कर रहा है जो पहले नहीं हुई है कहीं, उसको लाया जा सकता है। सेकेंडली उसकी 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये सारी हमें पहले सेटल करनी पड़ेगी। उसके लिए एक मेरा ख्याल है कि आपकी जो तजवीज़ थी जो आपने दी है, तीनों ही माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, तो उसमें जो पहली तजवीज़ है उसके ऊपर वी शुड सिट डाउन, आप एक और कमेटी बना दें, नॉट द फाइनल, वो एक रिकमेंडेशंस लेके आए कि जी ये पहले साल की कैटेगरीज होंगी, ये उनकी क्राइटेरियाज होंगे, अगले साल की कैटेगरी जो है वो दूसरी होंगी, मतलब जिस तरह भी आप उसको करें ये एक बन जाए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने की भी बेहतर पोजीशन है। थैंक यू वेरी मच। मेरा भी इसमें ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम किसी अकाउंटेंट प्रोफेशनल जो उसकी बैकग्राउंड भी चेक कर रहा है, उस इंडस्ट्री का बंदा, वो भी इसको कमेटी में डाल सकते हैं, किसी लॉयर को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी इस तरह के लोग को डाल के कमेटी। ये अभी आपको डालने की, लेट्स से आप फर्ज करें मेटल को लेते हैं, राइस को लेते हैं, टेक्सटाइल को लेते हैं, आपने राइस में से आप समझते हैं कि यार 4 अवार्ड देने हैं, 5 अवार्ड देने हैं, तो 5 अवार्ड तो हमारे माशाल्लाह जो हमारे लीडिंग बिजनेसमैन है राइस के, उनको हम जानते हैं, हमें किसी को डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट देखिए, वैसे नहीं पता है सर, 4-6 टेक्सटाइल के आपको पता है, 4-6-8 प्रोमिनेंट बिजनेसमैन टॉप लेवल की कंपनी आपको पता है, तो आप 5-5 लेते हैं ना, 10-12 सेक्टर, 60 लोग ये बन जाते हैं, 5-10-12 लोग आप उनसे वो लेते हैं, कोई अच्छे नामवर लोग जो गुजरांवाला के ऐसे बेटे हैं जिन्होंने बहुत किया है अदर देन बिजनेस कम्युनिटी, 10-12-15 आपके पास फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ठीक है, और 2-4-6 अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट लेते हैं जो चैम्बर से एक्टिवली रिलेट नहीं करते, तो आपके पास 100 एक बंदा हो जाता है इजीली। मेरा नहीं ख्याल आपको बहुत टेक्नोक्रेट्स चाहिए। जी ठीक बात है जी। इरफान सर परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, खुद ही परफॉर्मेंस है। थैंक यू वेरी मच। एक्सपोर्ट जो है मैक्सिमम एक्सपोर्टर है, बड़े एक्सपोर्टर। ठीक है, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ अच्छा मालिक साहब सर एक्सपोर्टर के हर सेक्टर से रहने शुरू होए ना जी, फिर ये या सेक्टर में फिर जी मैं सर, मैं सर थोड़ा सा राम साहब प्लीज सर मैं थोड़ी सी मुख्तसर बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी डिस्कशन मुझसे पहले चल रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि हम किस तरफ जा रहे थे। मेरा आप लोगों से थोड़ा हटके थोड़ा नजरिया होगा, मैं आपको थोड़ा बताना भी चाहूँगा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जो अपने अवार्ड को थोड़ा सा मेरे हिसाब से ना मिक्सअप कर रहे हैं, आप हीरोज़ को और अचीवमेंट अवार्ड को आप मिक्स कर रहे हैं। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की, वो अचीवमेंट्स हैं, जो कमर्शियल चीज़ें हैं, चले किसी ने बिजनेस बढ़ाया है, उसने पैसा कमाया है, मुल्क जो भी किया है उसने उसमें अपने लिए भी किया है और मुल्क के लिए डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी, उसको हीरोज़ नहीं कह सकते। देखो मेरी नज़र में हीरो वो बंदा है जो कि उसने अपनी ज़ात से हटकर सिर्फ कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए या शहर के लिए वो काम किया, उसमें उसकी कोई पर्सनल उसकी अपनी और नहीं है, उसको आप हीरो कह सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 2 किस्म के अवार्ड कर लें। एक आप करें जो हीरोज ऑफ गुजरांवाला प्योर हो, जिस बंदा जिस तरह इन्होंने कहा मैं उसको वाकई मान लूँगा, उसका अपना कमाया कोई नहीं, उसने लोगों को रास्ता दे दिया कि भाई ये गवर्नमेंट से जान छुड़ाओ, ये राइस वाले जिसमें आए हुए थे इससे मतलब उसका, लेकिन अपना क्या कहना उसका हाल कोई नहीं है।
اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ملکوں کے لیے, قوموں کے لیے, شہروں کے لیے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ہیرو آپ کو گجرانوالہ ڈھونڈنے میں چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا. اگر اتنے گجرانوالے کے ہیرو ہوتے آج گجرانوالہ کا یہ حال نہ ہوتا جو اس میں گجرانوالہ کا ہے. لیکن کریں, میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں یہ کریں کہ آپ جو اچیومنٹ ایوارڈ ہیں اس میں ایکسپورٹرز ہیں, اس میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں, جو بھی ہے اچھی اچیومنٹ کی ہے بندے, ہاں اس میں یہ کریں. ہمارے گجرانوالہ شہر میں دیکھیں سب سے زیادہ چیریٹی ہاسپٹل ہمارے گجرانوالہ شہر میں, لوگ جہاں پہ سب سے زیادہ خیرات کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو لوگوں کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے بزنس مین بھی ہوگا تو اس میں تھوڑا سا فرق کر لیں گے, میری تجویز اچھی لگے تو اس کو غور کر لیں, تو ٹھیک ہے, جس طرح ہو زیادہ بہتر سمجھے کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیرو اور اچیومنٹ ایوارڈ میں اس میں فرق ہے. تھینک یو. جی ویل نوٹڈ عرفان صاحب, بالکل اس پہ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈیلیبریٹ کیا. میں پریزیڈنٹ صاحب آپ کی اجازت سے اور اس کی بھی اجازت سے میری گزارش یہ ہے کہ یار چیمبر آف کامرس واحد ادارہ ہے بزنس کمیونٹی کا جو آپ کو اکنالج کرتا ہے. نہ سرکار آپ کو اکنالج کرتی ہے, نہ بیوروکریسی میں دنیا صاحب چلے جائیں وہ آپ کو اکنالج کرتی ہے. آپ بھی آپ دیکھیں دنیا صاحب, آپ نے اگر فرانس میں بزنس کھولا تھا یہ مذاق نہیں ہے. بازو لٹک دیتے ہیں وہاں پہ جا کے کام کرتے ہوئے اور اس کو شروع کرتے ہوئے, وہ انیشیٹو لیتے ہوئے. اگر آپ نے چاولوں کی ایکسپورٹ پہ بہت آسمانوں پہ چلے گئے نا, یہ ایک ہسٹری ہے یار, یہ کوئی آسان آج کا کام, یہ جاب کریشن ہے. آپ پھر آپ پیسے کما کے لا رہے ہیں. یا جی ڈی ڈاٹ کا جو ریٹ ہے وہ کن کی وجہ سے ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے پیسے کما کے لائے, پتہ نہیں کہاں سے کیسے کیسے ٹھوکریں کھائیں اور لا کے بانٹ دیے وہ پیسے. ہر بندہ ان پیسوں سے مستفید ہوا. جب اچھے لوگ, اچھے بڑے بزنس مین کہیں سے پیسے لا کے کماتے ہیں تو پھر پرائسز بھی ریز ہوتی ہیں, علاقہ بھی گین کرتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ کے نامور بزنس مین ہیں کسی سیکٹر پہ سے ہیں, یار ان کو ایز اے ہیرو اکنالج کریں. وہ ہیرو ہیں, وہ ہیرو ہیں اللہ کی رحمت سے. اگر آپ بھی ان کو ہیرو اکنالج کرنے سے ہیسیٹیٹ کرتے ہیں تو پھر کون اکنالج کرے گا یار؟ باقی تو ہمیں ویسے ہی نہیں مانتے کوئی بھی. تو اگر یہ جو ہمارے اچھے اچھے بزنس مین ہیں, اگر یہ بیوروکریسی میں ہوتے ہیں, اگر کہیں اور ہوتے تو یہ وہاں بھی ہیرو ہوتے. اور پھر ساری ٹھوکریں, ساری نیگیٹو ویوز, جو ہمارا لوکل انڈسٹریلسٹ ہے, جو امپورٹر ہے, چلے ایکسپورٹر بیچاروں نے ٹھیک ہے یہ انسینٹو ڈیویلیوشن پر لی ہے, لیکن جنہوں نے ساری نیگیٹو ویوز کو دیکھتے ہوئے, فیئر کرتے ہوئے, بیئر کرتے ہوئے بھی پھر بھی ترقی کی ہے, یہ قابل ستائش ہے. وہ لوگ آپ اکنالج کریں. گریٹ سر. آصف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارا پلیٹ فارم ہے, ہم اپنا انسٹیٹیوٹ میں ہے نا, ہم بھی ڈاکٹر ہم کی اپنی اپنی تنظیمیں بنی ہیں. گورنمنٹ آف باڈی کی طرح کو نام دے دیا ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو کم کریں اور اپنے لوگوں کو ڈالیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو کریں, چیریٹی والوں کو کریں. اور تیسرا جو سب سے ضروری ہے نا, 90s میں گجرانوالہ کیا تھا, ہم ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے, ڈیولپرس کو ڈالیں جنہوں نے 10,000 گھروں کی اسکیمز دی ہیں. فیس کو ہی چینج کر کے رکھ دیا, گجرانوالے کا فیس ہی چینج کر دیا. بات کھٹا ہونے کہ نہ بھی آئل فارم ہے, سٹی ہاؤسنگ ہے, یہ نہ ہوتے تو آج گجرانوالہ کیا ہونا تھا, گند ہونا تھا. کنگ مال نہ ہوتا, مولا گجرانوالہ نہ ہوتا, قدر سینٹر نہ ہوتا. میرا خیال یہ بھی عارف سلیم صاحب جی, اب سارے اگلا ایجنڈا کے میں ڈسکس کرنا ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کو پلیز شارٹ کیا جائے, یہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. آپ اس کو شارٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا گجرانوالہ بات ہے, آپ اس کو کہیے اپنے ہیرو نہیں, آپ 4-5 بندے, ساری محنت ان کی ہو جائے گی, ہم ان 5 میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہیں, پی ایم اے والے بولتے ہیں کہ آپ 5 بندے دے دیں ہمیں, ہم ان میں سے 5 سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ہر جو بھی مقصد اپنا آئے گا سلسلہ, اس میں سے 4-5 بندے لیں. ایک تو ہم پہ وہ جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور اس میں سے ہم ایک بندہ آسانی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. بڑی آپ صاحب آپ کو سن رہے صاحب. جی شکریہ صاحب. جب کہ آپ نے پلان کیا تھا کہ ہم نیوز کے لیے کوشش کریں گے, اس وقت آپ نے اپنے یہ کہا تھا کہ ہم سب لوگوں سے نام لیں گے, بعد میں اسکروٹنی ہوگی, اس میں سے نکالیں گے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا پروسیس ہے. لوگ ساتھی ہمارے ایگزیکٹو, ہمارے جو لیڈر ہیں وہ نام دیتے ہیں, اسکروٹنی میں
देना है, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। इस पे हमें वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसमें देखिए जो जीरो बिजनेस प्लान आया है, हमारा ये इदारा किन के लिए है? कारोबारी लोगों के लिए। तो माशाल्लाह हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इसके साथ दूसरे शोबों में भी हमें देना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें कारोबारी लोगों को अफजाई करना चाहिए और हमारी यही साथी जो है एटलीस्ट स्कूटी करें ताकि किसी को ना हो। थैंक यू वेरी मच। अगला मैं माफी से प्रेसिडेंट साहब, आप सबकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा। आप सब जो मैंने अगर आपने नाम रिकमेंड कर रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के करें। मुझे 3-4 लोगों का ऐसा फोन आया है स्टेट 2 से, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मदर साहब सानू अवार्ड दवाना जी। लेकिन अब खुदा ना खास्ता आप स्क्रूटनी में आप लोग कहते हैं नहीं तो दे बात ये कि देखिए हमें थोड़े तो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब ये हमने अपनी ईमानदारी से मेरिट पे फैसले करने हैं। इंशाल्लाह हम करें। इसका तरीका ये है हर बंदे को देखिए, हर बंदे की खुशनुदी उसका तरीका ये है कि ओपन नाम लेना। हम हर बंदे की खुशनुदी देकर अचीव नहीं कर सकते। हमारा काम है ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से कोशिश करना। बाकी फिर ठीक है, क्या हो सकता है? पूरे शहर में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ना पॉलिटिकल होना चाहिए ना उसमें होना चाहिए। मियां साहब आने ने देखो जब बंदा आवे तो फेडरेशन का हाल करो ना तो 10 लाख जेब में तो आ जाए। बड़ी आइडिया सब दोस्तों ने राय दी है, बहुत अच्छी सी राय है। मेरी सोच है आपको लेकिन जिस तरह नाम आ रहे सामने साहब बताया, हमें इसको 2 स्टेज में करना चाहिए। ये इतना आसान काम नहीं है कि हम नाम पूछना है। ये काम आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर लें, हीरो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अब है वो वहाँ पर कर रहे फंक्शन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर लें, हम लोग उधर बुलाया उधर कष्ट रहेगा। और दूसरा ये है कि हमें वार्ड जो है ना उनकी तादाद पहुँच कर जाएगी, हम कितने वार्ड देंगे उसी वार्ड में मतलब सेट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं होगी हर बता देगा मुझे ऊपर आप देने वाले होंगे, हमने 5-4 वार्ड देने हैं, हर कैटेगरी के 5 है जी मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह ये होना। और दूसरा जिसका अनुसार बताया कितना लंची पूरा नहीं हो जाए वहाँ पर ले जाए बोल रहे पूरा बड़ा साफ अच्छा होना चाहिए। अवार्ड रूल है, ये भी तो बात। चलिए सर, इसमें हीरोज वाले सब्जेक्ट को हम क्लोज करते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक म्यूट है डॉक्टर साहब। जी हेलो डॉक्टर साहब, आप बात करें प्लीज। आप किसको कह रहे हैं? जी हेलो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो मेरिट पे होना चाहिए। ये मेरे पास सोच है जो मेरिट पे है उसको सिलेक्ट कर। ये शुक्रिया बात करने का मौका देने का शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी है और उनमें से अगर एक तजवीज़ को सजेशन को मैं नोट किया तो ये बताया था कि जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया और लोगों के लिए किया तो वो हकदार है हीरोज ऑफ जवान। लेकिन दूसरी तरफ जो अचीवमेंट्स हैं बिजनेस में, तो मेरा मशवरा इसमें ये होगा कि वो भी हीरो ही है बट उनको कैटेगराइज कर दिया जाए कि अवार्ड ऑफ अचीवमेंट, उसके अंदर अम्ब्रेला ऑफ हीरोज ऑफ। एक तो ये चीज़, बाकी कुछ
दूसरा जो इसका सबसे मुश्किल काम है वो क्राइटेरिया डिफाइन करना, वो कैसे होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उस पर कम से कम कुछ खास एविडेंसेस होनी चाहिए, तो उसकी बुनियाद पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे। जैसे एक्सपोर्ट की बात करें तो जो टॉप एक्सपोर्टर है उसको उस बिजनेस में एक अवार्ड दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा अवार्ड देने से बाकी सेक्टरी ऑफ दी अवार्ड खत्म हो जाए। तो ये मेरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मेरे ख्याल हीरोज के टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब अगला सब्जेक्ट ये है कि जो ट्रस्ट हम एक बात की थी कि गुजरांवाला का चैम्बर का कोई ऐसा पूल ऑफ फंड होना चाहिए, उसके ऊपर अगर कोई थोड़ी सी बात करना चाहेंगे तो वो करते हैं। उस पर सिर्फ ये कि जो इस पर ट्रस्ट वाली बात मैं कर रहा हूँ कि वो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं कि क्या सब एग्री करते हैं कि ऐसा कोई ट्रस्ट हमें डेवलप करना चाहिए पूल ऑफ फंड्स जो कॉमन पड़ा हो, और उसमें वही लोग फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आए पार्टिसिपेट करें जो फिजिकली डोनेट कर रहे हैं, सिर्फ वो जी आंसर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट। ये आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा खिलाफ करता हूँ कि ये इसकी जो है शेयर इसकी जो है ना वो कदर ठीक नहीं, कदर इस हिसाब से ठीक नहीं है कि हर वक्त के हिसाब से जो है वो सियासत में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन चीज़ होती रहती है और चीज़ें जो है ना होती है। आज के रोज़ कोई किस रूप में चला जाता है, किस रूप में चला जाता है, तो इसका जो हमारा जो मकसद है ना वो बहुत हो जाएगा और लोग इसमें काबिल नहीं रहेंगे। हमने माजी में एक काम किया था, जैसे वो अंडरपास जो कपड़े वाली मार्केट के सामने बनाया था सरवर के ग्राम साहब के दौर में, तो उसमें भी मैंने 2 लाख रुपया दिया, आप लोगों ने भी, मेरे साहब ने भी, हर लोगों ने अपनी पॉकेट के काम दिया। मैं जनरल एक आपको मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो वो एक टाइम भी था। और ये जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ये चैम्बर के रिलेटेड मेरा ख्याल चीज़ें नहीं है जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये गवर्नमेंट की डोमेन पे है, गवर्नमेंट अपना बोझ खुद उठाए। होता ही है कि गवर्नमेंट अपनी जान छुड़ाने के लिए वो चैम्बर के ऊपर हर बंदा आके सारे डाल देता है। इसके लिए थोड़ा बहुत तो जो उसका हाल ही है कि जो उस वक्त करंट रजीम है, जो करंट रजीम है वो अपना एक पूल फंड बनाए, पूल फंड बना के जो उनकी बुटीक पड़ती है वो उसको पूरा करे। अननेसेसरी आप ये नहीं ये कोई आ जाएगा कि मेरा जो है ना वो पुलिस लाइन का हॉस्टल बना दे, कोई आ जाएगा ये बना दे, वो बना दे। ये काम गवर्नमेंट के हैं, ये हमारे चैम्बर के काम नहीं है। हमारे काम जो है ना वो इस डोमेन में हम नहीं आते। और इसका जो भी इसका बोझ है वो करंट रजीम जो भी हो वो एक पूल फंड कायम करे और वो पूल फंड से थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल के उनको दे दिया जाए। अब ट्रस्ट के हवाले से मेरी एक तजवीज़ है कि एक गुजरांवाला जैसे कि लाहौर में आप जाते हो तो मेरा ख्याल एक लिबार्ड उन्होंने एक काम किया हुआ है। लिबार्ड जो है ना वो आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो मतलब बना के लोगों को लाहौर चैम्बर देता है और वो परमानेंट बेसिस के ऊपर काम कर रहा है। हमें अगर ट्रस्ट बनाना है तो वो क्रॉस द बोर्ड एक परमानेंट बेसिस पे एक ट्रस्ट बनाना चाहिए और ट्रस्ट जो है उसकी जो है ना सर्टन जो है ना वो क्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी एफिलिएशंस, उसके कुछ रेगुलर मेंबर हों, परमानेंट मेंबर हों, कुछ उसके जो है ना वो उसके नीचे कुछ मेंबर हों और बाकी टाइम में जो है ना वो डोनर हो। इस किस्म का ट्रस्ट बनाया जाए ताकि अगर वो उमर अशरफ नहीं है, उमर अशरफ के बाद कोई और बंदा नहीं है तो ये चीज़ें जो है ना कंटिन्यूटी उस चीज़ की जो है ना वो जारी रहे। इस किस्म का मेरा मॉडल है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ट्रस्ट इस किस्म का हो कि वो परमानेंट मलिक जेडी साहब है, अच्छे डोनर है, बड़े डोनर है, जो बड़े डोनर है उनका नाम जो है ना वो परमानेंट बोर्ड्स की बोर्ड में लिखा जाएगा, जितना वो एक क्राइटेरिया बना दिया जाए और वो परमानेंट जो है ना वो काम करेगा। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ये बड़ा टाइम बीइंग और बड़ा शॉर्ट टर्म है और इसको ये हमारी डोमेन में नहीं आता, मतलब मेरी ये पर्सनल राय है। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आप ये टॉपिक जो है ना ये ट्रस्ट वाला, जैसे हमारे बैठे हैं ये भी अच्छे डोनर हैं, रहमदिल आदमी हैं, सारे ही अच्छे। मैं समझता हूँ जो अच्छा बिजनेसमैन है ना सारे डोनर हैं। जहाँ ये जितने चेहरे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, साबका प्रेसिडेंट्स बड़े बड़े लोग नाम है, ये सारे बड़े हुए ही इसलिए हैं कि ये अच्छे डोनर हैं, क्योंकि और कोई मैजिक नहीं है। अल्लाह आपको अगर कोई रिवार्ड दे रहा है ना तो वो आपकी मेहनत और काबिलियत का सिला नहीं है। आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह मेहरबानी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके आपको वापस लौटा देते हैं अपने वादे के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि एक कमेटी बना दें, उसके सरबराह इनको बना दें, इनको कहीं कमांड दें, इस सेक्टर पे जो भी जिस तरह चाहते हैं ये काम करें
किसी एक बंदे को असाइनमेंट दे, ये खुद भी बहुत अच्छे डोनर हैं, इनको ही आते हैं, ये सब ऐड करेंगे बाकी बिल्कुल मैं तो आपके तीनों पॉइंट्स को सेकंड कर चुका हूँ, बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए। और ये एक तरह रजीम जो कलेक्शन करती है वो आप भी कर रहे हो, हमने भी हमसे पहले भी लोग ने की, लेकिन एक ग्रुप क्या एक पूरा होता है कि चैम्बर ही कर इस्लाम आए सुनते हैं, सियालकोट वालों ने ये किया, शहर के लिए ये किया, तो ऐसा एक पंचायत सिस्टम जो बना है उसमें हम शहर में बेहतर चैम्बर आपकी मिशन बना सकते हैं। ये बड़ी दुनिया सब की एक बात है, तो इसमें बड़ा जो कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे काम हमें इस केस के ऊपर ये नाम बनाना जो हाँ उनकी बात भी ठीक है, उसके ऊपर हम ये कर सकते हैं कि कुछ अगर पुलिस आदमी आगे कहते हैं कि हमें कुछ सुनना तो वी वोंट गो फॉर दैट। इसी कहता है कि कोई सरकारी बिल्डिंग है उसकी मरम्मत करवानी है तो बहुत होता है। हाँ अगर कोई आगे जैसे आपने गवर्नमेंट तो सभी के अदारा है और उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है हमारे तो उसमें इस तरह का फंड जो है मस्त होना चाहिए और इसको इन रिगार्ड ऑफ ग्रोथ और एवरीथिंग ये पूरा हमारे जितने भी सीनियर जो भी इससे जो सबसे बड़ी बेनिफिट होता है कि हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए चैम्बर की तरफ हम देखता है, चैम्बर एनालाइज करता है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर द चैम्बर और फॉर द कम्युनिटी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज लोग ऐसी बात कहते हैं कि मेंबर इनकी जो फीसों को रखा गया और इसमें जो हमारी जो लाइफ थी और आपको फैमिली हो जाए हम आपका मुख्तलिफ अगर हमको ये करना है क्या वो ये भी होना हमें शौक है एग्जैक्टली बनने का, तो कुछ ग्रेनेड कैसे नहीं देना नहीं डोनेशन तो हो ना आप इतना लग रहे हैं मेरा ख्याल है इसी को कर रहे हैं फाइन भी इम्पोज करें जो फाइन भी हो गया जो मेंबर अटेंड नहीं करता आता नहीं है मेंबर बन जाता है और आता है उसको फाइन इम्पोज करें और वो फाइन भी उस पर जाए। स्टैंडिंग कमेटी को कोई स्टैंडिंग कमेटी लेके बैठे हैं लोगों पे इन आपने ड्यूटी लगाई थी, कोई फोन अटेंड कर रहा है, कोई कह रहा है लाहौर, कोई खाने वाला, कुछ बंदों की आज तक बात नहीं हो रही। स्टैंडिंग कमेटी की 50 आती है और ये पीछे हमारे नाम को देख और भी करके मिलेगी बात ये है कि सर ये मेरा है कि लाइट ऑफ की बात है इस तरह नहीं कर सकते का मतलब आपने किसी कमर्शियल बेसिस पे इसमें आपको ये बात बताऊँ कि ये चीज़ हम कहते हैं ये फलां बंदा आता नहीं फलां जाता नहीं, तो ये मेरे जो नहीं आता वो अपना नुकसान करता है, वो आएगा नॉलेज हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, काम करेगा, लोगों की नज़रों में आएगा, उसको आगे कंसीडर किया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो पीछे रह जाएगा थोड़े इसी रूप। लेकिन मसला ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की है ना कि हम अपना एक ट्रस्ट कायम करें, तो हमें वैसे ही जिस तरह से सारे माशाल्लाह लोग अल्लाह की राह में देने वाले, अल्लाह से तजारत करने वाले, तो उसमें बढ़ चढ़ के कोई ऐसा बन भी जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन उसकी कोई वाज़े सिमत, जिस तरह यहाँ साहब ने कहा उसकी सिमत वाज़े करना है कि हम लोगों ने किस साइड पे काम, किस तरह के काम करने, हमने सपोज अपने को मेडिकल फील्ड में जाना है, हमने किसी बच्चों की फीसों के चक्कर में जाना है, हमने किसी के छोटे कारोबार में जाना है, या जिस तरह के काम, ये शहर की ऐसी चीज़ जिसकी वजह से शहर में कुछ बहुत बड़ा भला हो सके। अल्लाह का शुक्र है कि राष्ट्रीय मुस्लिम साहब जो अपने साल पर दुआ वाले थैंक्स लगाएंगे, यकीन करें कि मुझे कोई ऐसा बंदा ही नहीं जिसने उस सिलसिले में दुआ की कि यार आपने ऐसा काम किया है, हालांकि वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, मैंने पढ़ा हुआ था और सब खजाने में पढ़ा था, इन्होंने मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है वो काम हो गया और आज लोग उससे मुस्तफीद हो गए। तो इस तरह के काम हो गए, अगर हमारे पास पैसे उस टाइम नहीं करने इकट्ठे कर लिए, और अगर ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसे पड़े होंगे तो हमें ईजी हो जाएगा। अगर कोई दोस्त आते हैं, लेकिन उसको ये करें कि वॉलंटियर, किसी को फोर्स नहीं, अगर मैं आता हूँ मैं इतने देने, वो कहता है मैंने इतने देने, वो कहता, यानी कि उसको
का बेशक नाम भी ना लें, जो देता है वॉलंटियर भी अपने आप को उसमें लेके उस पर फोर्स ना करें, इस तरह को रखें ना तो फीस किस तरह तो उसमें करें, अच्छी बात है, अपने तौर पर सारे एक इंशाल्लाह, और हम भी इंशाल्लाह उसको इस तरह जी बिल्कुल, यही बस मकसद है कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट मुझे गवर्नमेंट का काम हमने कोई नहीं करना, हमने अपनी मर्जी से वो जो चूज करेंगे हमने करना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने 5 PhDs प्रोड्यूस करने हैं गुजरांवाला चैनल में, 2 PhDs को हमने स्पॉन्सर करना है, 2 हमने डॉक्टर्स हर साल चैम्बर जी। देखिए हमारा पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा होगा, हमारे पास तो डेडिकेशन आए, हम उसको बताएं कि गुजरांवाला चैम्बर का ये ट्रस्ट है और गुजरांवाला चैम्बर इस ट्रस्ट के तहत हर साल 2 PhD प्रोड्यूस कर रहा है। तो बढ़िया हमारे लिए तो आएगा कि 2 डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपके पाकिस्तान फाउंडेशन एजुकेशन है, तो आपकी सारी चैनल की माशाल्लाह उसमें मेरा 4 से 6 डॉक्टर बन रहे हैं, 4 से इंजीनियर बन रहे हैं, और इनका बच्चे बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं, PhD और PhD भी हैं। तो आप भी लोग कर रहे हैं, बल्कि आपको लेना चाहिए वो सारे, आपके पास पता हो या आपकी रिकमेंडेशन से मामला या सरकार साहब बैठे हैं तो उनको भी सरकार साहब माइक जी बात करनी है तो आपकी क्या राय है इस राय तो बड़ी अच्छी है, ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट स्कूल भी चला रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा, इसके अलावा भी होगा इंशाल्लाह। प्रेजेंट सर, जैसे सर ने फरमाया कि यहाँ पर साहब की क़यादत में बनाए ट्रस्ट और सारे महल कोई भी किसी से ऐसी लायबिलिटी ना बने। चल थैंक यू वेरी मच। बस अगला बात यही था कि उसका मैं गुजारिश यही करनी चाहता कि जरूरी नहीं है कि सानू कहंदा हॉस्पिटल बना के बना दईए, ਅਸੀਂ एक मैक्सिमम इमीडिएट ही ना वो रख सकते हैं कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी बात ये भी ट्रस्ट का मैं जो बैठा है अपना बैठा क्लास उससे वो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ किसी ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ऐसे अगर ट्रस्ट साडा बनया है साडे हाथ में रखो होई ते प्रेसिडेंट साहब की कमेटी बनी होगी 4-5 बंदियां दी, ਉਹਨੂੰ ਉਸਲੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ कमेटी फैसला कर रही होगी, और कमेटी में सारी आमिर साहब जैसे उमर साहब जैसे आप जैसे लोग होंगे उसमें सारा काम तेरा है, उन्होंने काम कर देना है, तो कहते हो जा सब सारे के बंदे के जान कमेटी जान बिल्कुल करके रिश्तेदार सबसे कभी राय लेनी है, जिले में थर्ड पार्टी चलते हैं व्हाट्सएप को पता ही नहीं है बाकी तीसरा वही पॉइंट है कि हम कोई एक और उसमें भी फिर एक मीटिंग चलो बनाते हैं, कोई इस तरह के लोग बैठ के कोई मास्टर हम कोई प्रिंसिपल का तय करते हैं, तो वो भी उसमें भी रीड में हम सारे लोग को करा है। जी जी इंशाल्लाह चलें, थैंक यू वेरी मच। मेरा खाना आ रहा है तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। सबका शुक्रिया आगे का जी, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही। नहीं आपका आने का शुक्रिया। बेसिकली ये मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ही है, जो भी बेसिकली चैम्बर की अचीवमेंट होती है वो सब लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह से हो रही होती है, किसी एक फर्द वाहिद का कोई कमाल इसमें नहीं होता। उसमें अगर कोई टीम परफॉर्म कर रही होती है उसमें गुड लक होती है कि आप जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बैक पे मौजूद होता है, वो हैड मौजूद होती है। तो ये जो भी हम लोग अचीव कर रहे हैं इसका सारा क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है, ये पूरी टीम को पूरे ग्रुप को जाता है। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन है एक सब है ऑनलाइन उनको कैसे ये सर्व करेंगे
से इजाजत दे तो कह रहे हैं देखो